आज महासप्तमी है और महासप्तमी के साथ ही आज से पूजा पंडालों में सीमित संख्या में भक्तों की भीड़ दिखने लगी है। इस साल कोरोना के कारण भव्यता के बदले सादगी से पूजा का आयोजन हो रहा है। हर साल विद्युत सज्जा और आकर्षक पंडालों के बजाय इस साल साधारण तरीके से पंडालों को सजाया गया है। पूजा पंडालों में आज महासप्तमी की पूजा चल रही है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के दिशा निर्देशों को देखते हुए पूजा के दौरान पंडालों में आने वाले लोगों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। तो नवरात्र का 7वां दिन है आज और बिल्कुल अलग तरीके से दुर्गा पूजा का आयोजन हो रहा है। महासप्तमी के साथ ही आज से पूजा पंडालों में सीमित संख्या में कोविड के नियमों का पालन करते हुए पूजा हो रही है। इस साल कोरोना के कारण भव्यता के बदले सादगी से पूजा का आयोजन चल रहा है। हर साल विद्युत सज्जा और आकर्षक पंडालों के बजाय इस साल बिल्कुल सादगी से और साधारण तरीके से पूजा पंडालों को सजाया गया है। इस वक्त महासप्तमी की पूजा चल रही है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए पूजा के दौरान पंडालों में आने वाले लोगों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। प्रोटोकॉल के बीच पूजा का आयोजन हो रहा है। हालांकि पंडालों में लोगों की भीड़ काफी कम है, लेकिन फिर भी हिदायतें कड़ी है, लेकिन श्रद्धा अपार नजर आ रही है। लोग बिल्कुल चंद लोगों की मौजूदगी में अंजलि हो रही है। पूजा का आयोजन हो रहा है और इसी तरह से हिदायतों के बीच, कड़े निर्देशों के बीच लोग मां के सामने अपना सिर झुका रहे हैं। ৰাজেশ্বৰ সিংহৰ দিনতেই আমি সত্ৰ হিচাপে স্বীকৃতি পাইছিলোঁ। তেতিয়াৰ পৰাই আমাৰ ইয়াত ধাতুৰে নিৰ্মিত দশভূজা ইয়াতে পূজা চলি থাকে আৰু দুৰ্গা পূজাও আমি ইয়াতে কৰা হয়, কিন্তু মৃন্ময় মূৰ্তি আমাৰ ইয়াত নাথাকে। আমি ষষ্ঠীৰ পৰা নৱমীলৈকে আমাৰ ইয়াত পূজা চলে। আমাৰ আবাহনো নাই, বিসৰ্জনো নাই, যেহেতু দেৱী ইয়াত আমাৰ প্ৰতিষ্ঠিত সেই ৰাজেশ্বৰ সিংহৰ দিনৰ পৰাই। ইয়াত স্থায়ী মূৰ্তি আছে। আমাৰ ইয়াত দশভূজাৰ স্থায়ী মূৰ্তি ধাতুৰে নিৰ্মিত আছে। বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ এখন দৰঙৰ ভিতৰত এখন বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ শাক্ত সত্ৰ। ইয়াত বলি বিধান পূজা পাতল ডেইলি চলি থাকে। বৰ্তমান যি কোভিড মহামাৰী আছে আৰু সেই মহামাৰীৰ কাৰণে আমি অতি অনুষ্টুপীয়াকৈ এবাৰ পূজা আয়োজন কৰিছোঁ আৰু যিবোৰ কোভিডৰ নিয়ম আছে সেইখিনি নিয়মাৱলী মানি আমি পালন কৰিম। 1723 চনতে এই পূজাভাগ আৰম্ভ হৈছিল। চন্দ্ৰকান্ত সিংহৰ যি পৃষ্ঠপোষকতাত আমাৰ গংগেশ্বৰ গোস্বামী, তাৰ পিছৰ পৰা এই পূজাখন নিৰবিচ্ছিন্নভাৱে এতিয়ালৈ চলি আহিছে আৰু 1881 চনলৈ ইয়াতে বলিবিধান হৈছিল, অতি ধুমধামেৰে হৈছিল। কিন্তু সেই সময়ত যি এক বলিবিধানৰ বিৰুদ্ধে এক গোটেই ভাৰততে জাগৰণ আহিছিল, সেই জাগৰণৰ প্ৰতি সন্মতি জনাই আমাৰ বলিবিধান প্ৰথাটো তেতিয়াৰ পৰা বিলুপ্ত কৰা হয় আৰু 1976 চনলৈ উত্তৰ গুৱাহাটীৰ সমগ্ৰ ৰাইজে ইয়াতে একেলগে আহি এইখন বাৰোৱাৰী পূজা হিচাপে পালন কৰি আহিছিল। This is the 150th year of celebrating Durga Puja by Dibrugarh Amlapati Rajwa Namghar Samiti. This year we plan to celebrate this puja in a grand and befitting way, but because of this COVID outrage, we are not in a position to celebrate in the manner in which we thought we would celebrate, and therefore we have postponed it to the next year, this 150th celebration. Now, so far as this year is concerned, it's a bit unlike the other years in which we have
been observing Durga Puja, because as you all know, and not only us but all the other in all the other puja mandaps also, this puja has been celebrated or a puja has been performed as a ghat puja. We are strictly abiding by the rules which have been imposed by the administration so as to contain the COVID spread of COVID. And we are concerned. You can very well see we people are all putting on the face mask and the hand gloves, and the shield is also there. And so whatever protocols were issued by the SOP, was issued by the administration, we have adhered to that, and we are following it. And we are till the last till the Dasami will be following that guidelines which have. तो दुर्गोत्सव पर कोरोना का साफ असर देखा जा रहा है। महामारी की वजह से भव्यता के बदले सादगी से पूजा का आयोजन चल रहा है। महासप्तमी के दिन पूजा मंडपों में भक्तों की भीड़ बिल्कुल नहीं है। सिलचर में ऑनलाइन अंजलि की व्यवस्था की गई है, तो वहीं ऊपरी असम में भी पूजा को लेकर खास रौनक नहीं देखी जा रही। थर्मल स्क्रीनिंग, सैनिटाइजेशन, इस प्रक्रिया के अंदर ही कहीं ना कहीं दुर्गोत्सव समेट रहा है। सिलचर के कालीबाड़ी रोड दुर्गा पूजा कमेटी ने एक काफ़ी प्रशंसनीय कदम उठाया है। यहाँ घर में लोगों को माँ दुर्गा की अंजलि देने की व्यवस्था की गई है। पूजा कमेटी का कहना है कि चूंकि कोविड की वजह से बड़ी तादाद में भक्त माँ को अंजलि देने पंडाल में नहीं आ सकते, इसीलिए पूजा कमेटी की तरफ से ऑनलाइन अंजलि व्यवस्था की गई, ताकि घर में जितने भी भक्त बैठे हैं वो ऑनलाइन ही माँ के दर्शन कर सके, माँ को अंजलि दे सके। ये थी सिलचर के कालीबाड़ी रोड दुर्गा पूजा की तस्वीर। वहीं शिवसागर में भी बिल्कुल कोविड के नियमों का पालन करते हुए भक्त सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बलि प्रथा में शामिल हुए। हाथों में हंस लेते हुए शिवसागर में भक्तों को पंडालों में कतारों में खड़े होते देखा गया। तो पंडालों में खास तरह की व्यवस्था की गई है। जिस तरह के दिशा निर्देश जारी किए गए कोविड को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, उसका हर एक पंडाल ने पूरी तरह से पालन किया। मूर्तियों को काफ़ी सादगी से रखा गया। पंडालों में साज सज्जा तामझाम बिल्कुल नहीं नजर आ रही। जितने भी पूजा पंडाल है गुवाहाटी या फिर राज्य के, तामझाम बिल्कुल देखा नहीं जा रहा। बिल्कुल सादगी से इस बार पूजा का आयोजन हुआ है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लोग इस बार मां दुर्गा के सामने शीश झुकाते नजर आ रहे हैं। এইবাৰ ভক্ত সমাগম আগতকৈ সীমিত। কিহৰ কাৰণে বুলি ভাবে? এইবাৰ করোনা হেৰি কৰি ৰাইজ অলপমান কম হৈছে। করোনা অতি মহামারীর জন্য এই পাড়ার প্লাস আপনার এতদিন চলে সব মানুষ আসতে পারছেন না, তো এই সমস্যাকে আমরা অনলাইন ব্যবস্থার মাধ্যমে এবার নিঃসরণ করার চেষ্টা করেছি। এবার কোভিড পরিস্থিতির কারণে অলপ জাকজমকতা বিহীন হৈছে, পৰিৱেশ একেবাৰে কোভিডৰ কাৰণে একেবাৰে মানে সীমিত। আমাৰ আগৰ মহাসপ্তমী ইতিমধ্যে বহুত ভিৰ হয়, কিন্তু এইবাৰ দেখা গৈছে যে আমাৰ ভক্তগণৰ যথেষ্ট সমাগম কম হৈছে। আমাৰ মহামাৰীয়ে যি দেখা দি আছে, তো সেই হিচাপত বহুত মানুহৰ আগমন কম হৈছে এইবাৰ। আমি প্ৰৱেশ আৰু প্ৰস্থানৰ দুটা ব্যৱস্থা কৰি দিছোঁ চৰকাৰী নিৰ্দেশ অনুসৰি, আৰু আমি স্কেনিঙৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ সন্মুখ ভাগতে, আৰু তাৰ লগে লগে আমি চেনিটাইজৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। যদি কোনোবা ভক্তই মাস্ক লৈ অহা নাই তেতিয়াহ'লে আমি সমিতিৰ ফালৰ পৰা মাস্কৰ যোগান ধৰিছোঁ। अब हम आपको दिखा रहे हैं भरलुमुख के स्लुइस गेट की तस्वीर। ये गुवाहाटी के भरलुमुख इलाके के स्लुइस गेट के पूजा पंडाल की तस्वीर है। यहाँ भी भव्यता की जगह सादगी से पूजा का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें, भरलुमुख के स्लुइस गेट की पूजा काफ़ी प्रसिद्ध है। काफ़ी दूर दराज से भी लोग इस पूजा को, यहाँ के थीम को देखने आते थे, लेकिन इस बार बिल्कुल नज़ारा बिल्कुल विपरीत है। थीम नहीं बल्कि बहुत ही सादगी से महज मूर्ति, दुर्गा माँ की मूर्ति को यहाँ पूजा की जा रही है। किसी तरह की कोई तामझाम नहीं, किसी तरह की कोई साज सजावट नहीं। বহুতে ব্যতিক্ৰম। এই কৰোণাই
সকলো শেষ কৰি দিলে আৰু কি কয় ইয়াতো চুইচ গেটৰ পূজাত কিমান মানুহ হয় বাট নিমিলিব আহিব নোৱাৰি আজি ইমান নিমমৰ পৰিৱেশ এটা সঁচাকৈ বেয়া লাগিছে কি কৰিব পূজাটো পূজাই হয় মা দুৰ্গাক সকলোৱে আৰাধনা কৰিবই লাগে এই আৰতি সময় হয় এতিয়া সেই গতিকে আমি আহিলোঁ ভাল লাগিছে আৰু দেৱী মা সৰুকৈ হ'লেও ভাল লাগিছে। राज्य के विभिन्न पूजा पंडालों की हम आपको एक एक कर तस्वीर दिखाएंगे। फिलहाल हम आपको सीधे लिए चलते हैं धुबरी में, जहां हमारे सहयोगी राजीव मौजूद है। राजीव, किस पूजा पंडाल में हैं आप धुबरी के और किस तरह का उत्साह, किस तरह का उमंग नजर आ रहा है उस पूजा पंडाल में? जी कविता, पहले तो आपको और आपका जो असम के जो हमारा जो नॉर्थ लाइव के जो चैनल है सभी दर्शकों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। मैं अभी उपस्थित हूँ धुबरी का जो हरिसभा पूजा पंडाल है मंडल में। आप देख सकते हैं मुस्लिम शहर में बैठे हैं। अभी जो सप्तमी पूजा खत्म हो गया, लेकिन ये जो है कविता बोलना पड़ेगा कि ये जो हरिसभा पूजा मंडप है इसमें असल एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ में जो धर्मीय जो रीति नियम है, रीति नियम में मौखिक पूजा होता है। यहाँ में कोई पंडाल जो जैसा है वो सजाना नहीं है। और इस बार तो ऐसा है कि कोविड प्रोटोकॉल मान के सबने पूजा आया। मैं जहाँ पर खड़ा हूँ आमतौर पे देखा जाता है जो पिछले बार पूजा में देखते हैं कि इस टाइम में वो हज़ार जो मतलब जो यहाँ का जो दर्शक है वो लोग आता है, लेकिन इस पर देखिए कोई आदमी नहीं है। 2-3 केवल इक्का दुक्का जो आदमी है वो निकल के आया है। आप देख सकते हैं फिर भी दोपहर से बारिश भी हो रहा है, इसके लिए दोनों ऊपर में मैं थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ। बहुत ভাল লাগি আছে আজি সপ্তমীৰ দিন আমি আহিছো আজি, কিন্তু বাৰিষাৰ কাৰণে অলপ कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन आज सप्तमी में थोड़ा सा बारिश के लिए थोड़ा सा डाउन हो गया हमारा एक्साइटमेंट। वैसे बाकी सब बहुत ठीक है। क्या प्लानिंग है? 3 दिन हो रहे हैं। अभी तो जाना है, आज धुबरी में आए हैं, कल यहीं पे और घूमना है, बाकी बस यही। थोड़ा सा पिछले बार जैसा हुआ था इस बार ऐसा नहीं हो रहा है, थोड़ा सा मन में डर भी है। हाँ, थोड़ा सा हमें वो डिस्टेंस मेंटेन करके रख रहे हैं, जैसे मास्क पहना हुआ है, बस यही। और एंजॉय करना है, वैसे ही दुर्गा माँ साल में एक बार आती है, एंजॉय तो करना ही है बस, लेकिन सेफ्टी के साथ राइट। एंजॉय करना है। क्या बोलेगा, कैसा लग रहा है? हाँ, कैसा लग रहा है? पूजा में आए आप? हाँ, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है बहुत। डर भी है मन में थोड़ा तो डर है, लेकिन आशा करती हूँ कि दुर्गा माँ सब ठीक कर दे जल्दी से जल्दी, ये कोरोना का पीरियड खत्म हो जाए, यही आशा करती हूँ। दुर्गा माँ के सामने यही प्रार्थना करती हूँ कि पृथ्वी पहले जैसा हो जाए और हम शांति से जी पाए सब। और जो लोग हमारे डॉक्टर्स है, नर्स है और सब है, वो उनको बहुत शक्ति दे कि ये वो लड़ पाए जल्दी से जल्दी और सब कुछ पहले जैसा हो जाए। 3 दिन और है पूजा, क्या प्लानिंग है, क्या करना है? एक्चुअली ऐसा कुछ प्लानिंग नहीं भी है। आज तो फ्रेंड्स के साथ आए हैं हम लोग, और कल देखते हैं। हमारे तो अंजलि होती है, उसकी थोड़ी सी प्लानिंग है फ्रेंड्स के साथ, और देखते हैं बाकी फैमिली के साथ भी जाएंगे 1-2 दिन। वैसे तो इतने दूर नहीं जा सकते, रहेंगे। जी राजीव, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, पहले कितनी भव्यता के साथ इस पूजा पंडाल में पूजा हुआ करती थी और आज की तस्वीर, इस पूजा की तस्वीर कितनी अलग है? कविता बहुत पक्का है कि ये जो धुबरी है टोटल पिछले बार हम लोग केरल के खाने चौथ तो उसमें पूजा हुआ था, लेकिन इस बार पूरा धुबरी जिले में 290 पूजा हो रहा है। और धुबरी टाउन जो हेडक्वार्टर टाउन है धुबरी, यहाँ में पिछले बार हम लोग देखे थे कि 104 पूजा हो रहा था, इस बार केवल 70 पूजा हो रहा है। मतलब 30 का कोई पूजा कम हो गया। और जितना भी पूजा है कोई इसमें जैसे जाग जब बोलता है ताम धाम पूजा नहीं है, कुछ नहीं है, एकदम किया हुआ है। और जो है ये लोग जो किया जो हर पूजा पंडाल में देखा गया कि मास्क का व्यवस्था किया है, सैनिटाइजर की व्यवस्था किया हुआ है। और कविता एक इम्पोर्टेंट बात है कि मैं जहाँ पर खड़ा हूँ ये हरिसभा है। ये हरिसभा क्या होता है, ये दशमी का दिन यहाँ पे 76% होता है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका राजीव, हमें धुबरी की तस्वीर दिखाने के लिए। तो जैसा कि हमारे सहयोगी ने बताया, पहले 120 पूजा हुआ करती थी धुबरी शहर में अकेले, लेकिन इस बार केवल 17 पूजा कमेटियों को आयोजन की अनुमति दी गई। तो इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना जो माहौल है, जो परिस्थिति है, वो बदल दिया है कोरोना ने।
तो धुबड़ी के बाद हम आपको अब जोरहाट की ओर लेके चलते हैं, जहां हमारे संवाददाता प्रदीप बोरा जोरहाट के एक पूजा पंडाल में मौजूद है। वो प्रदीप हमें सप्तमी के दिन जोरहाट का नजारा कैसा है उसकी तस्वीरें दिखाएंगे। प्रदीप। হয়, সমগ্ৰ দেশতে আৰু সমগ্ৰ ৰাজ্যতে এতিয়া কৰোনা মহামাৰীৰ আতংক, যাৰ বাবে এবাৰ দুৰ্গোৎসৱৰ উখল মাখল পৰিৱেশ নাই। যোৰহাটৰ ব্যতিক্ৰম নহয়। যোৰহাটত যিহেতু এইবাৰ পূজাৰ যি নীতি নিৰ্দেশনা আছিলে, পেণ্ডেল নিৰ্মাণ কৰিবলৈ দিয়া হোৱা নাছিলে, যাৰ বাবে যোৰহাট নগৰৰ গড়ালি কেন্দ্ৰিক যিসমূহ পূজা, সেইসমূহ পূজা এইবাৰ অনুষ্ঠিত হোৱা নাই। বৰ্তমান মই আছোঁ যোৰহাটৰ JPRত। আৰু JPR পূজা সমিতিয়ে এইবাৰ তেওঁলোকে 50 বছৰত ভৰি দিলে আৰু তেওঁলোকে গল্ডেন জুবিলিৰ বাবে তেওঁলোকে অতি বিশাল আয়োজন কৰাৰ কথা আছিলে। আটক ধুনীয়াকৈ মণ্ডপ তৈয়াৰ কৰাৰ কথা আছিলে, আলোকসজ্জা তেওঁলোকে ইয়াতে সুন্দৰকৈ কলকাতাৰ পৰা আনি কৰাৰ কথা আছিলে। কিন্তু এবাৰ কৰোনা মহামাৰীৰ বাবে যি নীতি নিৰ্দেশনা প্ৰশাসনে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিছে, যাৰ বাবে তেওঁলোকে আনুষ্ঠানিকতা ইয়াতে কৰিছে। প্ৰতিমাৰ উচ্চতা তেওঁলোকে প্ৰশাসনে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া মতে কৰিছে। একেধৰণে তেওঁলোকে চেনিটাইজাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে, ইয়াতে অক্সিমিটাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। ভক্তসকলক আহিলে তেওঁলোকে যাতে টেম্পাৰেচাৰ চাব পাৰে সেয়াও ব্যৱস্থা কৰিছে। যিহেতু তেওঁলোকে এইবাৰ গল্ডেন জুবিলি আছিলে আৰু যি উদযাপন সমিতিৰ বিষয়ববীয়া আছে, আমি তেওঁলোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিম তেওঁলোকৰ ইমান বিশাল আয়োজন আছিলে, কিন্তু কৰোনাই তেওঁলোকক বিধি পথালি দিলে। আপোনালোকৰ এবাৰ গল্ডেন জুবিলি ইতিমধ্যে কৰোনাৰ কাৰণে সকলো কাৰ্যসূচী বাতিল কৰিলে, নিয়ম মাফিক কৰিবলগীয়া হৈছে। তথাপিতো আপোনালোকৰ মনত দুখ আছে নেকি বা কেনেধৰণে আয়োজন কৰিছে? दुख तो आसे यार वो दुख तो है ही हम लोग को, कारण जो दुर्गा पूजा JPR का दुर्गा पूजा का नाम था, लोग दूर दूर से आते थे। और इस साल हमारा 50 सालों गिर गए, गोल्डन जुबली था। पर अभी क्या करेंगे, जो बजट हमारा हैवी बजट होता रहा, पर अभी हम लोग 50,000 के बजट में पूजा कर रहा है। क्योंकि पहले कोविड के साथ युद्ध करना है, युद्ध करके उसको जीतना है। उसके बाद भी दुर्गा माई तो फिर मिलेगा, जिंदगी में रहेंगे तो आगे बढ़ते रहेगा। और आपके न्यूज़ के द्वारा हम सब आसाम वासी को दुर्गा पूजा की शुभकामना देते हैं। और हमको एक ही अनुरोध है कि जो पब्लिक अपना कोई को लक्षण लग रहा है कि हमारा कुछ सस्पेक्ट अगर होता है उसको कि मेरा कोविड है या बुखार है या जुकाम है, तो अपने आप को सेफ साइड करे। अगर डॉक्टर के पास भी नहीं जाता है तो मैं अनुरोध करता हूँ वो कम से कम घर में रहे, 10 आदमी को नहीं फैलाए, आसाम को नहीं फैलाए और देश को नहीं बर्बाद करे। हमारा रिक्वेस्ट है। हम लोग সকলো দেৱী দুৰ্গাৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছে যে এই মহামাৰী নোহোৱা হওক আৰু জীয়াই থাকিলে উদযাপন কৰিবলৈ সময় আগলৈকে পোৱা হ'ব। আৰু যেন বিষয়ববীয়া আছে, 50 বছৰ হ'ল আপোনালোকৰ গল্ডেন জুবিলি আছিলে, কিমান ধুনীয়া আয়োজন আছিলে, কিন্তু এবাৰ নিয়ম পালন কৰিছে। हाँ, मैं जोरहाट JPR दुर्गा पूजा कमेटी से बोल रहा हूँ। असम के भीतर जोरहाट का नाम आने से पहले JPR की ही पूजा आता है। और ऐसा कोई आदमी नहीं है जो JPR की पूजा नहीं देख पाता है। हर कोई JPR के ऊपर आशा लगाए रहता है। लेकिन हम लोग का इस बार गोल्डन जुबली था, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल के उसका मानते हुए भी हम लोग ने पूजा को संक्षिप्त में किया है। हम लोग का बजट भी बहुत हाई था। उस जगह में हम लोग अभी एकदम लोएस्ट से लोएस्ट बजट में पूजा कर रहे हैं। जैसे कि कम से कम लोग तो निकले इतना दिन के बाद, 7-8 महीना घर में लोग घुसे हुए हैं, उनको भी तो थोड़ा रिलीफ चाहिए। इसलिए हम लोग जितना हो सके हम लोग का तरफ से उन लोगों को आह्वान करते हैं कि आप लोग निकल के आइए, थोड़ा दर्शन कीजिए माँ को, शायद कुछ हो जाए। হয়, অতি এটা আদৰণীয় পদক্ষেপ যে প্ৰতিখন পূজা সমিতিয়ে প্ৰশাসনৰ নীতি নিৰ্দেশনা মানি চলিছে। JPR পূজা সমিতি যিহেতু গল্ডেন জুবিলি আছিলে, তেওঁলোকে স্বেচ্ছাসেৱকসকলে, তেওঁলোকৰ কমিটিৰ বিষয়ববীয়াসকলে একেলগে নিজে চেনিটাইজ কৰিছে। ভক্তক ইয়াতে হেণ্ড চেনিটাইজ কৰা দেখা গৈছে, টেম্পাৰেচাৰ চোৱা দেখা গৈছে। সকলোখিনি কোভিড প্ৰট'কল মানিহে তেওঁলোকে এই গল্ডেন জুবিলিৰ যি আনুষ্ঠানিকতা তেওঁলোকে কৰিছে। আৰু তেওঁলোকে আশা কৰিছে যে মা দুৰ্গাই তেওঁলোকৰ এই যি ইয়াতে আমাৰ আতংক চলি আছে সেয়া নোহোৱা কৰিব আৰু আগন্তুক সময়ত তেওঁলোকে অতি সুন্দৰভাৱে। तो जोरहाट के JPR पूजा पंडाल की तस्वीरें दिखा रहे थे हमारे सहयोगी। इस पूजा पंडाल की गोल्डन जुबली थी, तो जाहिर तौर पर अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि कितनी भव्यता से यहाँ पूजा का आयोजन होता। लेकिन कोविड के चलते यहाँ का बजट महज 50,000 रुपए में ही सिमट गया। तो कोविड ने ये असर दिखाया है। आम जनमानस के साथ ही दुर्गोत्सव पर भी कोविड का असर साफ देखा जा रहा है।